Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum class 7. How are you to all? I hope you are fine. Please open your history book. Page number 47. Chapter number 7. Today we are going to read chapter number 7. The chapter name is Akbar's successor, Jahangir and Shah Jahan. Akbar's successor, Jahangir and Shah Jahan. The topic is Jahangir and the duration of Jahangir is 1605 and 27 to 27. Let's start reading. First of all, I must say that in this chapter we will prepare this chapter for MCQs and short question answers. Okay, let's start. Prince Salim, the eldest of Akbar's son, was named after the saint Salim, Chishti of Sikri, with whose prayers and blessings Akbar became a father. Salim was loved and cared by his parents, and Akbar personally trained him in the art of kingship. He made sure that Salim's education started at the age of 4 and he was taught Persian, Turkish, Arabic, arithmetic, history, geography and other sciences. His tutor Abdur Rahim Khane Khanan was a genius and greatly influenced Prince Salim. As we read already about Abdur Rahim and Akbar in previous chapter, chapter number 6, we get complete knowledge about Akbar and his empire and his rule. Now his son, whose name is Salim. What is the name of Akbar's son? The Akbar's son name is Salim. Underline this word, that Salim, the oldest sons of Akbar, was named after the saint Salim Chishti of Sikri. As you know, the saint Salim Chishti is a Sufi, जिसके लिए अकबर ने एक पैलेस भी बनवाया था. उनकी ही दुआओं से अकबर के यहाँ सलीम की पैदाइश हुई. इस पैराग्राफ में वो यही बताना चाह रहे हैं कि सलीम अकबर का बेटा था और उसका नाम सूफ़ी बुज़ुर्ग सलीम चिश्ती के नाम से ही रखा गया, क्योंकि उस सूफ़ी बुज़ुर्ग का नाम सलीम चिश्ती था, इसलिए उसने अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा. क्यों रखा? क्योंकि ये बुज़ुर्ग की ही दुआओं की वजह से पैदा हुआ. Akbar became a father. Salim was loved and cared for by his parents, and Akbar personally trained him in the art of kingship. इसलिए सलीम को अपने पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और केयर मिली और अकबर ने पर्सनली उसको बादशाही के लिए, किंगशिप के लिए रेडी किया, ट्रेन किया. He made sure that Salim's education started at the age of 4. When Salim get start education at the age of 4. Please underline this line. He made sure that Salim education started at the age of 4 and he was taught Persian, Turkish, Arabic,
arithmetic, history, geography and other sciences. Please underline this line too, because in examiner could ask about his education and his detail of education. His tutor Abdur Rahim Khane Khanan was a genius and greatly influenced Prince Salim. Now underline this line too, because examiner could ask about his tutor's name. What is the tutor name of Salim? Salim's tutor name was Abdur Rahim Khane Khanan. At Akbar's death in 1605. When Akbar died? Yes, in 1605. Underline this line. At Akbar's death in 1605, Salim succeeded to the Mughal throne. What is the meaning of throne? The chair or seat occupied by a sovereign or ceremonial occasion, or you can say a ceremonial chair for the sovereign, king, bishops or similar figure. Understand? Taking the title of जहांगीर, इट मीन्स कि जैसे ही अकबर की डेथ हुई उसके बाद सलीम मुग़ल दौर का बादशाह बन गया और उसको टाइटल मिला जहांगीर का. व्हाट इज द टाइटल ऑफ सलीम? द सलीम टाइटल इज जहांगीर, विच मीन्स वर्ड सीजर, जिसका मतलब है वर्ड सीजर. And what is the meaning of Caesar? Caesar means sudden attack. What is the meaning of Caesar? Sudden attack. At his occasion. What is the meaning of occasion? Please write the synonym which I am telling you. Caesar, occasion. Occasion means the formal acceptance of a treaty or government. I repeat, the formal acceptance of treaty or government. And what is the meaning of throne? A ceremonial chair for the sovereign, king, bishops or similar figure. Now back to the line. The title of Jahangir, which means world Caesar, at his occasion. And what is the meaning of occasion? The formal acceptance of treaty or government. Coins were struck in his name. यहाँ पे वो जहांगीर का नेम बता रहे हैं और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जैसे ही उसने अपनी किंगशिप को संभाला, फिर उसने अपने नाम से कॉइन्स को जारी कर दिया और वो सबके लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी था. स्ट्रक मीन कम इनटू फोर्सिबल कॉन्टैक्ट. स्ट्रक मीन्स कम इनटू फोर्सिबल कॉन्टैक्ट. फोर्सिबली सबको उसकी एम्पायर में ये इशू किया, उसने अलाउ किया कि मेरे कॉइन्स जो यहाँ पे कॉइन्स यूज़ किए जाएंगे वो मेरे नाम से ही यूज़ किए जाएंगे. जहांगीर्स मोस्ट फेमस एक्ट was the setting up of a chain of justice. अब ये उसका सबसे बड़ा काम था और क्या था? मशहूर भी था, फेमस. जहांगीर्स मोस्ट फेमस एक्ट was setting up of a chain of justice between the Shahpurji or Agra fort and a stone pillar fixed on a bank of the river Jamna. Any person who wished to voice his grievance. And what is the meaning of grievance? Grievance means complaint. Complaint. Could pull the chain and gain an audience with inferior.
ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था जहांगीर का। वो क्या कि उसने एक चेन ऑफ जस्टिस के नाम से एक चेन सेट की, चेन ऑफ जस्टिस, जो कि शाह बुर्जी ऑफ आगरा फोर्ट एंड स्टोन पिलर फिक्स्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, इसके बिटवीन ये चेन लगाई गई। शाह बुर्जी ऑफ आगरा फोर्ट एंड a stone pillar fixed on a bank of river Yamuna. What is the name of river? Yamuna. यहाँ पे इसके दरमियान चेन ऑफ जस्टिस चेन फिक्स की गई। जब भी किसी पर्सन को कोई कंप्लेन होती तो इस चेन को पुल करता और हुकूमत तक अपनी बात को पहुंचाता कि मुझे ये कंप्लेन है। जहांगीर हैड इनहेरिटेड अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एम्पायर फ्रॉम हिज फादर। जहांगीर को उसकी विरासत से ही एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एम्पायर मिली थी। अकबर एंड ही कंटिन्यूड अकबर्स पॉलिसीज ऑफ टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस अमंग द वेरियस कम्युनिटीज। As we discussed in previous lecture that Akbar stable tolerance and coexistence among the various community। अकबर ने अपनी एम्पायर में यह पॉलिसी बनाई थी, यहाँ पे टॉलरेंस होगा और कोएग्जिस्टिंग होगी अमंग द वेरियस कम्युनिटी, यानी हर मज़हब के लोग यहाँ पे इजीली रह सकते हैं। तो अकबर के बेटे जहांगीर यानी सलीम ने भी अपने फादर की पॉलिसी को फॉलो किया, कंटिन्यू किया कि मैं अपने फादर की पॉलिसी को कंटिन्यू करूंगा अपनी किंगशिप में, अपनी एम्पायर में। व्हेन हिज सन प्रिंस खुसरो रिबेल्ड। हु इज द सन? ये किसके बारे में बात हो रही है? व्हेन हिज सन यानी जहांगीर का बेटा प्रिंस खुसरो, उसका नाम क्या था? जहांगीर के बेटे का क्या नाम था? प्रिंस खुसरो। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिंस? व्हाट इज द नेम ऑफ जहांगीर सन? जहांगीर सन नेम इज प्रिंस खुसरो। व्हेन हिज सन प्रिंस खुसरो rebelled। rebelled means, what is the meaning of rebel? A person who rises in opposition, resistance against an established government or leader. It means, I repeat, a person who rises in opposition, resistance against an established government or leader। यानी उर्दू में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब है बगावत। When his son Prince Khusro rebelled, he was dealt with firmly and his supporters were punished। ये अंडरस्टूड बात है, जब भी कोई रिबेल करेगा तो उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। यही सलूक प्रिंस खुसरो के साथ भी जहांगीर ने किया। उसने नहीं देखा कि ये मेरा बेटा है, उसको सज़ा दी गई और जो उसके साथ मिले हुए थे उनको भी वैसी ही सज़ा दी गई, पनिश किया गया। Among these was the Sikh गुरु अर्जुन। इनमें से एक सिख गुरु अर्जुन भी था। Who was put to death, जिसको सजाए मौत दी गई। गुरु अर्जुन punishment was for treachery and not because of his religion। गुरु अर्जुन को पनिश किया गया कि उसने धोखा दिया था, ना कि इसलिए उसको दिया गया कि उसका मजहब सिख था। यानी प्रिंस खुसरो के साथ मिलके जिसने भी जहांगीर को धोखा दिया उसमें उसका बेटा यानी प्रिंस खुसरो और दूसरे लोग भी शामिल थे, और उनमें से एक सिख गुरु अर्जुन भी था जिसको सजाए मौत दी गई। और उसको वो सजाए मौत उसकी मजहब की वजह से नहीं दी गई, बल्कि उसके धोखे की वजह से, उसके ब्लैकमेल की वजह से दी गई। ट्रीचरी मीन्स ब्लैकमेल। आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि उस पर्सनैलिटी का नाम बताएं जो प्रिंस खुसरो के साथ मिलके अपने बाप को धोखा दिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ
that person who rebelled or treachery to Jahangir. Understand? Jahangir's achievement was to bring Bengal firmly under the rule of Mughals and the conquest of Mewar, which led to rest the constant feud with the Rajput kingdom. Kangra was also conquered, but Kandara was lost to the Mughal forever when it was acquired by the Safavid rulers of Persia. ये सफाविद के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि उसने पर्शिया को, ये पर्शिया का रूलर था जिसने बहुत सी जगहों को कंक्योर किया था। ठीक है, तो जहांगीर की अचीवमेंट्स इस पैराग्राफ में डिस्कस की जा रही हैं कि जहांगीर ने बंगाल को, उसके बाद उसने मावरा को, उसके बाद उसने कांगड़ा को भी कंक्योर किया, लेकिन खंडारा को नहीं किया जा सका। वो हमेशा के लिए मुग़ल एम्पायर से छूट गया, खो गया, क्योंकि उसको किसने हासिल कर लिया था? रूलर सफाविद ने, सफाविद रूलर ऑफ पर्शिया। अंडरस्टैंड? आपसे इस पैराग्राफ में जहांगीर की कंक्योर के बारे में, अचीवमेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि उसने किन किन इलाकों को कंक्योर किया, किन किन जगहों को कंक्योर किया, जिसमें कौन कौन सी जगह हैं? बंगाल, उसके बाद मेवाड़, उसके बाद कांगड़ा, और किसको नहीं किया? वो कंदारा था। ठीक है। The Mughal Empire grew in artistic and cultural expression under Jahangir, who was aided by his queen Noor Jahan, whom he had married in 1611. कब शादी हुई इनकी? 1611। सलीम यानी जहांगीर ने नूर जहां से शादी की। The Mughal Empire grew the artistic and cultural expression under Jahangir, who was aided by his queen Noor Jahan, whom he had married in 1611. जैसे ही उसने नूर जहां से शादी की तो इसकी एम्पायर में एक चेंज आया। कैसा चेंज? आर्टिस्टिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन। She was an intelligent and capable queen who could understand the most difficult problem of the state and advise Jahangir. वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट एंड कैपेबल क्वीन थी जो कि हर प्रॉब्लम को समझती थी और जहांगीर को एडवाइस भी करती थी कि आप ऐसे नहीं, ऐसे कर ले अपनी एम्पायर के लिए, अपनी स्टेट के लिए। She lent beauty, splendor and glory to the Mughal court by setting the fashion of the age, writing poetry and designing jewelry and cotton and silk fabric. उसने बहुत से मुग़ल कोर्ट, जैसे ही वो मुग़ल कोर्ट में बैठना शुरू हुई तो उसने एक फैशन को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में था। उसने मुग़ल कोर्ट को एक ब्यूटी दी, एक ग्लोरी दी। ग्लोरी मीन्स अचीवमेंट, उसकी अचीवमेंट थी उसकी। ठीक है। स्प्लेंडर मीन्स एक जादुई असर था उसके वहाँ पे बैठने से, उसकी ब्यूटी वो बहुत खूबसूरत थी। राइटिंग पोइट्री एंड डिज़ाइनिंग ज्वेलरी एंड कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स। उसने वो शायरी करती, ज्वेलरी डिज़ाइन करती और कॉटन और सिल्क के फैब्रिक्स के ऊपर भी काम करती। यानी ये कपड़े हैं, कॉटन और सिल्क इसका मटेरियल यूज़ करती फैब्रिक्स में। हर फादर मिर्ज़ा गियास बेग वॉज एन एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट पर्सन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नूर जहां's फादर?
Noorjahan's father name is Mirza Ghias Beg. Mirza Ghias Beg was an educated and intelligent Persian who was appointed as Diwan at Jahangir's court and give the title Itmadud-Dawla आप इसको भी अंडरलाइन कर लें कि उसका टाइटल क्या था और वो एज अ दीवान वहाँ पे अपॉइंट किया गया था। ठीक है, एज अ दीवान मिर्जा गयास बेग अपॉइंट किया गया और उसको टाइटल मिला इत्मादुद्दौला का अंडर नूरजहां कोर्ट एंड गिव अंडर नूरजहां Persian influence dominated the culture and intellectual activity of the court. Persian influence dominated the culture and intellectual activity of the court. अब उसका फादर पर्शियन था, इसलिए कोर्ट में उनका कल्चर डोमिनेट होने लग गया। ठीक है, इंटेलेक्चुअल मीन्स, डोमिनेट मीन्स जाहिर होना। यहाँ हर जगह पर्शियन ही कल्चर नजर आने लगा, मुगल कल्चर को डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और एक इंटेलेक्चुअल मीन्स टू डू विद अ हाई लेवल ऑफ रीजनिंग एंड थॉट, टू डू with a high level of reasoning and thoughts. Her brother Asif Khan. Who is Asif Khan? Asif Khan is the brother of Noor Jahan. Her brother Asif Khan was made the prime minister of his daughter. It means कि उसके भाई को क्या बना दिया गया? प्राइम मिनिस्टर, एंड हिज डॉटर, और उसकी बेटी को भी। मुमताज महल बिकेम द वाइफ ऑफ प्रिंस खुरम हु लेटर असेंडेड द थ्रोन एज शाहजहां। मुमताज महल बिकेम द वाइफ ऑफ प्रिंस खुरम। प्रिंस खुरम की वाइफ का नाम क्या है? मुमताज महल, जो कि हु लेटर असेंडेड द थ्रोन एज शाहजहां, जो कि शाहजहां के बाद किंगशिप में यानी कि उसको बादशाही मिली। ठीक है, हु लेटर असेंडेड द थ्रोन एज शाहजहां। नाउ टर्न योर पेज। From 1622 as Jahangir health declined. From 1622 as Jahangir's health declined, यानी 1622 से जहांगीर की हेल्थ डाउन शुरू हो गई, उसकी तबीयत खराब रहने लगी। He began to leave the affairs of the state to Noor Jahan and coins were also issued in her name. उसने अपने सारे अफेयर्स यानी अपने सारे कारोबार, उसने अपने सारे मामलात अपनी वाइफ नूर जहां के को हवाले कर दिए और उसके कॉइन्स भी जो उसके नाम पे हुआ करते थे अब उसकी वाइफ के नाम से इशू होने लगे। दिस वॉज नॉट लाइक बाय सम ऑफ हिज नोबल्स। जो भी जहांगीर के जानने वाले थे या उसके खैर ख्वाह थे, उनको ये करना जहांगीर का अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आ रहा था। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन, जहांगीर्स डिपेंडेंस on Noor Jahan made him lazy and gave to pleasure instead of attending to his government. कुछ तारीखदानों का ख्याल है कि जहांगीर की इस वजह से कि उसने अपने सारे अफेयर्स, अपने सारे मामलात अपनी वाइफ के हवाले कर दिए थे, वो उसको लेजी बना रहा था। The 22 years of Jahangir's rule. How many duration of Jahangir's ruling? The ruling time of Jahangir is 22 years. 22 years is the ruling period of Jahangir. The 22 years of Jahangir rule saw an increase in the expenditure and the mop and show
at his court. 22 ईयर्स 22 सालों की रूलिंग की में जहांगीर की जितनी भी एम्पायर थी उसमें हर जगह हमें एक्सपेंडिचर में और हर चीज़ में इजाफा नज़र आ रहा था। एंड अमंग द नोबेलिटी, और उसकी खैर ख्वाही में, यानी हर कोई उसका खैर ख्वाह था। द वेल्थ एंड ग्लोरी ऑफ द मुगल कोर्ट वर फेमस इन यूरोप, उसकी ये दौलत और उसकी ये शान और शौकत यूरोप तक फेमस होगी। मुगल कोर्ट की ऑफ द मुगल कोर्ट वर फेमस इन यूरोप तक उसकी शोहरत चलेगी। एंड मैनी इन यूरोपियंस विजिटेड द मुगल एम्पायर, बहुत से यूरोपियंस ने फिर मुगल एम्पायर का विजिट किया। यूरोपियन एम्बेसडर्स वर नाउ सेंट टू द मुगल कोर्ट। In 1615, the ambassador of King James I of England, Sir Thomas Roe. What is the name of England? King James I of England. James I of England, Sir Thomas Roe, was sent to get trade sanction from Mughals. कब तजारत शुरू हुई, ट्रेडिंग कब शुरू हुई? इन 1615 को। किसके साथ? यूरोपियन के साथ। और वो कौन सा किंग था? एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, सर थॉमस राव। उसने एक एम्बेसडर भेजा मुगल कोर्ट में, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे ट्रेडिंग का काम शुरू करो, उनके साथ हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। He lived at the court and succeeded in obtaining a firman allowing the, what is the meaning of firman? Firman means एक allocation letter. Firman means a letter which is allowed to any country or ambassador, you can trade with us. He lived at the court and succeeded in obtaining a firman allowing the English to trade at Surat. कहाँ पे ट्रेडिंग शुरू की उसने? Trade at Surat. He has left an interesting account of Jahangir's court. He has left an interesting account of Jahangir's court. जैसे ही उन्होंने वहाँ पे ट्रेडिंग शुरू कर दी, फिर उन्होंने जहांगीर की कोर्ट में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, टुडेज योर डायरी इज रीडिंग पेज नंबर 47, चैप्टर नंबर 7, अकबर सक्सेसर जहांगीर एंड शाहजहां। यू हैव टू मेड 30 at least 30 MCQs or 30 short question answers in your notebook. It will be checked when school open. Allah Hafiz.